कुछ लोग और भी। सो वेलकम एवरीबॉडी। आज का जो वेबिनार है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है कि हमें इकोनॉमिकल और नेसेसरी इक्विपमेंट्स रखकर कैसे लैब हम लोग बना सकते हैं। एंड फॉर दैट आवर स्पीकर टुडे इज मिस्टर कुश गर्ग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम केजी सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, Mumbai. He is a part of Raj Scientific team working sincerely towards the betterment of paint and coating industry innovation and improvement for the environment. Sorry, for the equipment and testing equipment industry, creating high accuracy products with durable design, keeping the best intentions for the industry, keen on providing low cost economical solutions in very possible way. He is a part of Raj Scientific for past 2 years, striving for quality solutions through research and development for scientific equipments and laboratory instruments. तो एक एक यूथ, जैसा मैं पिछली बार भी सबको कह रहा था कि आज यूथ के अंदर बहुत ताकत है, बहुत अच्छे से जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन अपने बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ आज मिस्टर संजय गर्ग जो फादर हैं कुश जी के, वो इनकी हेल्प करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, फाउंडर ऑफ राज साइंटिफिक कंपनी संजय गर्ग स्कोर हैज अ कोर वैल्यू ऑफ एक्सेलेंस, इनोवेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और एक रिलेशन बिल्ड करने में हमारे संजय जी का जवाब नहीं है। ही इज अ वेरी गुड गाय, वेरी हम्बल एंड वेरी सपोर्टिव। इसके अलावा 25 साल ही हैज बीन मैनेजिंग राज साइंटिफिक कंपनी, which is the leading scientific instrument suppliers in India by adoption of the best industry practices with integrity and honesty. Sanjay Garg has completed his bachelor's in science physics degree from University of Mumbai, Mithibai College in 1992. एंड सभी लोग जानते हैं संजय जी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है सबके लिए। एंड आज हम लोग जो ये लैब इकोनॉमिकल लैब की बात करने वाले हैं with Raj Scientific. Here to you, Mr. Kush Garg. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for the warm welcome. I'm glad for this opportunity given by Mr. Manish and the Paint Vision. And here today I am dedicating myself and my experience from the past 2 years helping for the paint and coating industry. Here I would like to share my screen. So the today's title is Economical and Basic Laboratory Establishment for Raw Materials and Finished Goods. I have came across with a lot of people in the past who has always communicated me that they are facing problems, are not aware about the problems, and are not aware about the basic equipments which are important and are the need for paint and coating industry. To establish a to establish a factory, there is a basic necessity for a quality lab. Quality lab should be essential part of the planning. Why? Because the raw materials which are coming, which you all are procuring from the vendors should be thoroughly assessed before procuring the products. We are getting the samples, and to check that samples, we need a basic lab. Having a basic lab will help you to enhance the product quality and overall consistency, which will help you to meet the market demand. Building a quality product will give you stability, durability for longer period,
in all market conditions and environmental conditions. Having a basic lab is very important in today's date because to maintain the low cost, to to make an optimal use of the resources, and to have the best customer satisfaction and recurring order. Putting in your investment and your time for the instruments, you can say that it will be a best return. Facing the problem for the batch rejection, not having a good quality raw material, and deviating from the core values of maintaining a low cost in a competitive market can 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 be solved by the problem of just establishing a basic lab. Today, here I am conveying the message how economical and how important is the procedure, is the knowledge of establishing a lab. There are few challenges that we face when it comes to the raw material. Facing difficulties in establishing a good quality raw material with the vendors. When you're procuring the raw material and sampling it to introduce a new product quality line, it is important to thoroughly go through the quality of the product, passing each and every quality check inspection. When you have a product line and you want to introduce new raw material in order to enhance the quality and its long life, you need to have a thorough raw material understanding. Having the test certificates will help you to keep the track for the timely period of the raw material and the data which we are getting from the analysis. Maintaining the raw material from the multiple sources is also a very headache. Going behind a lot of vendors, targeting a lot of companies, and procuring them at the best price. So for that, there are certain quality checks. Here we face the same issue, or we can say we face the same kind of problems in the finished good. We all are putting our efforts, putting our resources, our time, money, energy to give a good quality product by maintaining the best price possible. To maintain the best price possible, we need to have a thorough check, thorough inspection. Then only we can compete or beat our competition. When we are supplying the instrument, it should pass all the physical properties and the chemical properties of the product, of the paint, of the powder coating. There are certain problems such as grinding. There are bits in the powder, in the product. We need to make extra grinding efforts, which consumes a lot of electricity, a lot of manpower, a lot of time. Shade matching. When we are working on the raw material and the finished good, we need to have a proper shade matching appliances, machineries, where we are visually checking or using the color readers, but maintaining the shade every time the batch leaves our factory and is at the customer end. So we have to maintain the consistency for viscosity,
solid content, and drying time. When the end application product is being applied through a brush or a conventional spray gun, it needs to be dried in a good amount of time. It should also avoid sagging. There are also basic factors. There are basic factors like adhesion, flexibility, impact, and corrosion. So I will set I will set up very simple and basic steps for the inspection. Always check the raw material and finished good. This is the core value. This is a core value in, getting a good quality product which is sustainable, which is durable and stable. By establishing the pre-established methods, there are multiple test standards which are being followed in the India market. We can say the Indian standard, the American standard, and others. To follow these standards, the instrument should be calibrated, should be accurate enough to give you proper results. We are determined for good quality instruments which test various parameters uncompromised. Here are the basic simple steps to check the raw materials. First, sampling of the raw material to be done according to the sampling plan. There is a plan, there is a structure where the formulation, where the pattern, where all the structures and patterns are being organized. So the raw material should check all the boxes. Visual inspection should be done according to the master batch, according to the standard. Why? When every time the raw material is coming in-house, it should be visually checked for lumps-free, for contamination-free, and moisture-free. There should be a minimum conformative test. This test allows you to conduct certain quality check in low period of time, which will help you to enhance the production process, to make the process faster, and you can supply the product to the customer at a faster rate. Finally, do the analysis of the raw material according to the inspection plan. Raw material test certificate should always be viewed, should always be accounted for. Test certificates should be accounted for the raw material and the finished goods. Test certificates will help you to have a traceability, to help you to identify the batch number, the lot number, the manufacturing date, and the production time. The few of the steps are very similar to the raw material checking. Checking of the finished goods, visual inspection, MCT, analysis, and the inspection part. And the most important, having a proper documentation and the test certificates. Filing the test certificate will help you for the future references. Here I am explaining out the procedures for the pigment testing and TiO2. TiO2 is a white color pigment and there are other color pigments available in the market. Lemon chrome, yellow chrome, scarlet chrome, orange chrome, carbon black chrome. These are in the powder form. These are very fine, very minute. When making a finished good, when making a paint, it is essential to check these raw materials. Physical appearances, with the help of the eye, it should check the color,
check the contamination and lumps free. Oil absorption value. It is the most essential part of the procedure where you are taking the pigment 2 gram and linseed oil with the market standard for 0.93 kg per liter density. It should be in this range of density. Otherwise, you can cross-check it with the help of a weight per liter cup. Taking a 2 gram of pigment on a glass plate and slightly adding in the small amount linseed oil with the help of a burette and making a stiff paste. Adding the linseed oil in the certain amount that will help it to make it a stiff paste. Note down the value on the burette. So this is a calculation where burette reading should be always in 0.05 ml. It should have a least count of 0.05 ml. How that much precise, that much accurate you should have a burette. And the density, which is 0.93. When there is a total weight of the pigment, which you are taking 2 gram. So this will help you. The oil absorption value will help you how much powder, the amount of powder required, the resin, the linseed oil to make a stiff paste formation. How much wetting should be done. If we are not considering the oil absorption value and it is on a higher end, we will have multiple physical properties failure, such as peeling off, adhesion. If the oil absorption value is high at the customer end, at the application time, the adhesion and the peeling off will take place. If the oil absorption value is low, then it will lead to the more consumption of resins. At the end, the cost will be high of the product. Keeping the oil absorption value precise to 2 decimal point is very important. For that, having a micro weighing balance with 0.1 gram of least count is very important. When testing the pigments, it is important to know the mass tone and reduction tone. In simpler words, mass tone and reduction tone helps you in shade matching. In this, taking 1 or 2 gram of pigment and adding alkyd resin to it. The instrument required in this is automatic pigment Muller. In the automatic pigment Muller, there are 2 glass plates in the bottom at the top. On the glass plate, take 2 grams of pigment Muller. Sorry, take 2 grams of pigment. Add alkyd resin, 1 to 2 drops, making a stiff paste, making a paste out of it. Then close the hatch. When closing the hatch in the neutral state, the 27 kilograms of weight is already applied in the neutral state. Add a 5 gram. In total, approximately 30 to 35 kg force is applied on the pigment. And the test is done. It will help to grind the sample. It will help to grind and minimize the particle size, make it fine. Use the pigment Muller for approximately 250 to 350 cycles. After completing the cycles, open the hatch. Again, collect the sample with the help of a spatula and add 2 to 3 ml
2 to 3 drops of alkyd resin. Also add dryers, lead, cobalt, magnesium, and zinc. This will help in fast drying, surface drying, full cure. When again use the Muller for 100 or 200 cycles. It should be half of the cycle set prior to the test. When the cycles are completed, the test is done. Collect the sample on a glass plate. Take some amount of the sample and place it on an opacity chart. Draw down the chart with the 150 micron applicator. When use the dryer, it will help you to dry the sample applied on the opacity chart, which will be air dry for 24 to 26 hours. When we are adding the dryers, it makes the process of drying and curing at a faster rate. When dried, use there are two methods for shade matching. It can be done visually. It can be done with the help of spectrophotometer. When shades are being matched with the master, we are doing it under the day 65 light. Visually matching and comparing the samples will help us for a better end application, better pigments. और जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं, जो हमारी डेल्टा ई की वैल्यू होती है, LAB वैल्यूज, जिससे हमें डेल्टा ई मिलता है, वो हमेशा 0.5 से कम होना चाहिए। अगर मेरा डिफरेंस 0.5 से ज्यादा आता है, देर इज अ चांसेस देर इज 100% चांस ऑफ बैच रिजेक्शन। देर इज अ हाई अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द कलर। डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसके लिए प्रिसाइज टू गो इन, तो ज्यादा प्रिसीजन में जाने के लिए हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगता है। रिडक्शन टोन, इसके अंदर भी हम 10:1 रेशो और 100:1 रेशो का सैंपलिंग करते हैं, जिसमें 1.8 ग्राम ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड एंड 0.2 ग्राम ऑफ एल्किड रेजिन लगता है। पूरा प्रोसीजर सेम है। वी आर यूजिंग पिगमेंट मुलर। रिडक्शन टोन का महत्व ये है कि इसके अंदर हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलती है। अगर मेरा पिगमेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो रेगुलर एप्लीकेशन पे मुझे वो ज्यादा डार्कर दिखेगा। इसका मतलब मुझे कम पिगमेंट यूज होगा। बट अगर मेरा पिगमेंट वीकर है, तो मुझे ज्यादा पिगमेंट डलेगा, जो मेरा भाव बढ़ाएगा। मेरी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी, मैन पावर बढ़ेगा, मेरा ज्यादा पाउडर पिगमेंट कंज्यूम होगा। सो पिगमेंट मुलर इज एसेंशियल फॉर पिगमेंट टेस्टिंग। व्हेन हम लोग रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, हम लोग डिफरेंट कलर्स के रॉ मटेरियल TiO2 प्रोक्योर करते हैं, ये सब दीज आर वेरी एक्सपेंसिव केमिकल्स। जब हम इतने एक्सपेंसिव केमिकल्स देते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस के लिए। दिस इज अ इकोनॉमिकल वे। एक और चीज होती है मॉइस्चर कंटेंट। जब मैं मेरा पिगमेंट लेता हूँ पाउडर, और मैं उसको विद हैंड, हाथों से टच करके फील करता हूँ, तो उसमें नमी महसूस होती है या नहीं। जब हम पाउडर प्रोक्योर करते हैं,
तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट शुड बी मिनिमम विद 0.5% मैक्सिमम। इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पिगमेंट लीजिए पेट्री डिश में 10 ग्राम, और उसको ओवन में डाल दीजिए 105 डिग्री के टेम्परेचर पर 2 आवर्स के लिए। जो भी वॉलेटाइल केमिकल होगा, जो भी मॉइस्चर होएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। उस पेट्री डिश को फिर हम डेसिकेटर में डालेंगे कूल डाउन करने के लिए। आफ्टर डेसिकेटर हम वो पेट्री डिश का वेट करेंगे। अभी इसके अंदर क्या होता है कि जब मैं मेरा 10 ग्राम पाउडर लेता हूँ, तो मुझे वो टोटल वेट करना रहता है सैंपल के साथ, एंड जो मेरा डिफरेंस आया उसका वेट। तो इन दोनों को माइनस करके जो मेरा टोटल वेट था वो करना रहता है इंटू 100%। मॉइस्चर कंटेंट हमेशा 100% में निकलता है, परसेंटेज में निकलता है। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो मटेरियल वेस्टेज आपका ऑलरेडी हायर एंड पे है। हमें मटेरियल कम वेस्टेज करने का, हमें ज्यादा से ज्यादा एंड प्रोडक्ट फिनिश गुड बना के कस्टमर एंड पे भेजने का। सो दीज आर द 5 सिंपलेस्ट पॉसिबल वे टू चेक द पिगमेंट: फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू, मास टोन, रिडक्शन टोन, एंड मॉइस्चर कंटेंट। एक और न्यूली टेक्नोलॉजी एक मशीन है जिसको बोलते हैं मॉइस्चर एनालाइजर। इसके अंदर हम डिस्क पे सैंपल लेते हैं एंड वी डायरेक्टली पुट इट इन द एनालाइजर। हम सीधा सीधा मशीन में डाल देते हैं। इसके अंदर हम 105 डिग्री टेम्परेचर सेट करते हैं। वो 3 मिनट तक मशीन चलती है, और 3 मिनट के अंदर आपको सीधा मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज में डिस्प्ले करता है। ये आपका टाइम बचाता है, ये आपका मैन पावर बचाता है। बट इंडिया में एमएसएमई में, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ओवन मेथड, हॉट एयर ओवन मेथड वाइडली यूज होता है। जब हम रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, बहुत बेसिक सा एक नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, लग सकते हैं। जब हम फ्लो कप की बात करते हैं तो उससे हमें विस्कोसिटी पता चलती है। मेरा सैंपल, मेरा लिक्विड कितना पतला है, कितना गाढ़ा है। अगर मेरी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी, मेरा ज्यादा मटेरियल कंज्यूम होएगा कवरेज में, एंड एप्लीकेशन में। स्प्रे गन में मेरा स्प्रे एप्लीकेशन विल बी ज्यादा। और जब हम डेंसिटी करते हैं, तो अगर मेरा सैंपल ज्यादा है तो मुझे ग्राइंडिंग ज्यादा करनी पड़ती है। मेरा लिक्विड डेंसिटी भारी है तो उसके लिए हमें वेट पर लीटर कप लगता है। फिल्म एप्लीकेटर जो 150 माइक्रोन का होता है, वो हमें शेड मैचिंग, ओपेसिटी और हाइडिंग एंड कवरेज की मदद करता है। जो हम ड्रॉ डाउन चार्ट पे लेते हैं, ओपेसिटी चार्ट, जिसके अंदर सेंटर में ब्लैक स्ट्रिप लगी रहती है। ये ग्लॉसी होता है, तो ये सॉगी नहीं होता, ये पेपर मजबूत रहता है। इसके अंदर आप 1 दिन से लेके 10 दिन तक एयर ड्राई करने के बाद भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। आप विजुअली देखेंगे या आप इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे भी देख सकते हैं। जो हाइड्रोमीटर होता है, ये सॉल्वेंट की डेंसिटी बताता है। हमें डेंसिटी पता होनी बहुत जरूरी है। और जब हम केमिकल्स में डील करते हैं, हमारे पास वेइंग बैलेंस की बहुत आवश्यकता होती है। माइक्रो वेइंग बैलेंस, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम भी
इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं। क्यों? आपका ओवरऑल बैरल अफेक्ट होता है अगर आपका 0.1 ग्राम का भी एरर आता है कैलकुलेशन में। हॉट एयर ओवन हमें मॉइस्चर कंटेंट, सॉलिड कंटेंट एंड क्योरिंग में हेल्प करता है। मॉइस्चर एनालाइजर जो मैंने आपको अभी बताया, एक ऑटोमेटिक मशीन आती है जिसके अंदर हमें 3 मिनट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट पता चलता है। डिस्टिलेशन अपैरेटस हमें प्योरिटी बताता है सॉल्वेंट्स की। सॉल्वेंट कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, हाउ कितना कंटेमिनेशन है फॉरेन केमिकल्स का। कलर कंपेरेटर ऑयल एंड सॉल्वेंट का कलर डिफरेंस बताता है। डिस्क आती है जिसके थ्रू लाइट में हम विजुअली डिफरेंस देख सकते हैं। एबल फ्लैश पॉइंट हमें फ्लैश पॉइंट बताता है कि उसका फ्लैशिंग क्या है, क्या टेम्परेचर पे रीच होती है। कलर मैचिंग विजुअल शेड्स मैचिंग के लिए होते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो डेल्टा ई बताता है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बताता है, जो हमें रिडक्शन टोन में काम आती है। ये मशीन जो आपके सामने है, ये ऑटोमेटिक डिजिटल पिगमेंट मूलर है। इसके अंदर 2 ग्लास प्लेट होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया अभी। ये हमें मास टोन और रिडक्शन टोन में मदद करते हैं। स्टॉर्मर विस्कोमीटर हमें हाई विस्कस लिक्विड्स जिसकी फ्लो रेट 300 सेकंड से ज्यादा है, हम उसको स्टॉर्मर विस्कोमीटर पे चेक करते हैं। हमें मेल्टिंग पॉइंट, टेस्ट सीव्स, स्पैचुला, थर्मोमीटर की भी आवश्यकता होती है। टेस्ट सीव से हमें रेसिड्यू पता चलता है। इससे हमें हमारी पाउडर की फाइननेस, कितने माइक्रोन का उसका पार्टिकल साइज है, वो पता चलता है। और बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमें ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, अर्लिनमायर फ्लास्क, पेट्री डिश, ग्लास प्लेट, मेजरिंग सिलेंडर, ये सब ग्लास आइटम्स होती है जो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज एंड टाइट्रेशन में मदद करती हैं। जब हम फिनिश गुड्स की बात करें तो हमें ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओवरऑल अपीयरेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। हमें उस फैक्टर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जब मेरा प्रोडक्ट किसी वॉल पे, किसी मेटल बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, तो वो कैसा अपीयर हो रहा है, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है नेचर एंड कंडीशंस के साथ, उसका थरो टेस्ट, थरो इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब हम कोटिंग थिकनेस गेज की बात करते हैं, हम जो ड्राई फिल्म अप्लाई करते हैं सरफेस पे, अगर हमने ब्रश एप्लीकेशन से उसको वेट फिल्म एप्लीकेशन से इफ हमने 100 माइक्रॉन्स अप्लाई किया एंड आफ्टर ड्राइंग इट इज ओनली शोइंग मी 40 और 50 माइक्रॉन्स, इसका मतलब मेरा 50% मटेरियल इवेपोरेट हो गया, वॉलेटाइल है, तो इससे मेरा मटेरियल कंजम्पशन ज्यादा लगेगा। टू सेव द मटेरियल, टू सेव द excessive wastage of the material, we use coating thickness gauges। ये ये 1% माइक्रोन की एक्यूरेसी पे चलते हैं। 1%। यहाँ पे कलर रीडर भी आते हैं और ग्लॉसोमीटर भी आते हैं। जब हम एंड एप्लीकेशन करते हैं, हमें उसका ओवरऑल ग्लॉसीनेस एंड मैटीनेस पता होना चाहिए कि हाउ मच लस्टर, हाउ मच शीन, हाउ मच शाइन, ये कितना एमिट करता है। हम ऑटोमोटिव बॉडी पे देखेंगे तो पेंट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, वी कैन, हम खुद को देख सकते हैं उसमें। इससे इसका मतलब उस पेंट की ग्लॉस वैल्यू बहुत हाई है। और जब हम पेंट एप्लीकेशन करते हैं एंड वो बहुत डल साइड या डार्कर है, वो बहुत ज्यादा मैटी कंडीशन में है, और यही जब हम हमारा मास्टर प्रिपेयर्ड है और हम हमारा बैच प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो दोनों का डिफरेंस, कलर डिफरेंस कितना आ रहा है, वो जो डेल्टा ई की वैल्यू होती है वो हमें एलएबी के थ्रू, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू पता चलती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक और टेस्ट आता है जिसके अंदर हम बेंडिंग, इम्पैक्ट, हम मटेरियल पे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो आता है, हम उसे इधर ये इन मैंडल के थ्रू, इन इम्पैक्ट टेस्टर के थ्रू हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर मेरा जो सैंपल है 180 140 केजी फोर्स का जो इम्पैक्ट विथस्टैंड कर सकता है, मेरा वो 3 साल की लाइफ विथस्टैंड कर सकता है। और जब अगर हम कोनिकल मैंडल में किसी सैंपल को, कोटिंग को बेंड करते हैं और वेयर एंड टेयर नहीं होता, इससे हमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है, मेरा मटेरियल कितना फ्लेक्सिबल है, मेरा मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग एडहेजन है। और ट्यूबुलर इम्पैक्ट टेस्टर के थ्रू हमें उसका डिफॉर्मेशन, जब उस पे इम्पैक्ट आता है तो कितना ज्यादा वो डिफॉर्म, कितना ज्यादा वो मटेरियल टूटता है। उसी के थ्रू हमें क्रॉस हेज कटर जो होता है एडहेजन के लिए काम आता है। स्क्रैच टेस्टर भी एडहेजन के लिए काम आता है, जिसके अंदर हम नीडल के थ्रू कोटिंग को टीयर करते हैं। कोनिकल मैंडल बेंडिंग, सिलेंड्रिकल मैंडल बेंडिंग के लिए काम आता है। ट्यूबुलर इम्पैक्ट टेस्टर इन वो पता चलती है। और पेंसिल्स हमारी कोटिंग तैयार हो जाती है तो समझिए कि हमारा कितना ज्यादा वीकर क्वालिटी का है मटेरियल सैंपल। एंड सॉल्ट कंटामिनेशन टेस्ट भी करते हैं। हम सैंपल्स को सॉल्ट स्प्रे में डालते हैं जिससे उसकी करोजन पता चलती है। अगर हमने कोई पेंट प्रिपेयर किया है और हम उसे कोस्ट लाइन में, कोस्टल एरिया में उसका प्लेसमेंट है, तो उसका बहुत ज्यादा हाई ह्यूमिड इंटरैक्शन है, इसीलिए हम सॉल्ट स्प्रे टेस्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ करोजन, द नंबर ऑफ आवर्स, वेदर इट कैन विथस्टैंड करोजन और नॉट। और ह्यूमिडिटी कैबिनेट चेम्बर एक ह्यूमिड कंडीशन क्रिएट करता है, नमी वाली मौसम क्रिएट करता है, जिसके अंदर हम कोटिंग को देख सकते हैं कि वो पफिनेस या पील ऑफ हो रही है नहीं हो रही है। और बहुत इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसके अंदर हम शेड मैच कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज शेड कार्ड आते हैं, हाइड्रोमीटर आते हैं ह्यूमिडिटी देखने के लिए, पैनल्स आते हैं एप्लीकेशन करने के लिए, थर्मोमीटर आते हैं, हमारा क्या टेम्परेचर पे वो सैंपल है। और थर्मोमीटर ज्यादातर -10 से लेके 110 डिग्री तक स्टैंडर्ड होता, मार्केट स्टैंडर्ड है। ये बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन में यूज होता है। हम लोग बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस एंड बहुत ही ज्यादा इजी इजी करके देना चाहते हैं कस्टमर्स को। बिकॉज जब हम कस्टमर से इंटरेक्शन करते हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम्स का हमें आइडिया आता है कि उनका प्रॉब्लम्स क्या है, वो किधर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनकी नीड क्या है। तो हम उसको बेटर एड्रेस करने के लिए और बेटर रीच आउट करने के लिए हमने हमारे प्रोडक्ट को इकोनॉमिकल कॉस्ट पे रखा है आप लोग के लिए। और हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं तो हम आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। और हमारी कस्टमर फीडबैक इतनी अच्छी है कि इवन आफ्टर 10 years हम लोग सर्विस देते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर मार्केट प्लेयर्स एज वेल। हम लोग कस्टमर के एंड पे रहते हैं, उनको
सर्विस देते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वी आर द लिसनर्स, यू आर द स्पीकर्स। और कोई भी फीडबैक, कोई भी इंसाइट शेयर करने के लिए प्लीज रीच आउट टू अस ऑन द गिवन नंबर और ऑन आवर मेल आईडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेट कुश, ग्रेट, इट्स रियली वंडरफुल टू लिसन टू यू। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं आज, उन सबको भी बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, वो एक्सपेंसिव रहते हैं। और हमें कौन सा बेसिक इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए किस किस प्रोडक्ट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए या फिनिश गुड्स के लिए। तो आज हम लोगों ने ये देखा है कि सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सामने मिस्टर कुश ने रखे हैं, और हम लोग इस वेबिनार के थ्रू बहुत कुछ सीख पाए हैं कि हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। अब नाउ वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, जैसा हमारा सिस्टम रहता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं उनका जो माइक है वो ओपन करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी के बारे में। मिस्टर कुश, आप वापस थोड़ा चलेंगे, अपनी कुछ जो सॉल्वेंट को टेस्टिंग के लिए आपने दिखाया था वो एक बार वापस स्लाइड लेके आएंगे। हेयर 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 नहीं नहीं, वापस 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 पीछे, मतलब बैक कीजिए। यस, आगे आगे आगे। और हाँ, ये डिस्टिलेशन अपार्टस जो है, ये मुझे इसके बारे में थोड़ा जानना है। It's just like you know डिस्टिलेशन प्लांट्स, मिनी डिस्टिलेशन प्लांट, और क्या है ये? तो जैसे जैसे आप मार्केट में से सॉल्वेंट्स बाय करते हैं, तो जी। सॉल्वेंट्स की प्यूरिटीज मालूम नहीं पड़ती है। जैसे हाँ। आपके फैक्ट्री में कंटेनर आता है, बाहर में ट्रक लोड आ जाता है, सो जी। इमीडिएटली यू विल नॉट कम टू नो कि हाउ प्योर इट इज। यस। तो कंटेनर को आपको अनलोड करना है, और उसके उसको इमीडिएटली यू हैव टू गिव द पेमेंट इन सम टाइम्स। हम्म। तो इसके लिए एचटीएम डिस्टिलेशन जो मेथड है, इज अ वेरी इजी एंड सिंपल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ योर सर ये सॉल्वेंट। जीसी है या कुछ और है सर? सर जीसी जो है, दैट इज अ वेरी हाई एंड प्रोडक्ट, सो विच हाँ। इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल स्केल। ओके। जो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, स्मॉल स्केल को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जी। तो इसमें एक फ्लास्क होता है जिसमें आप अराउंड 100 ml की आप क्वांटिटी फिल कर लेते हैं और हीटिंग करते हैं, एंड थ्रू द कंडेंसर, थ्रू द कूलिंग कॉइल कंडेंसर, उसका आउटपुट देखते हैं। एंड यू हैव टू मेजर कि एट द व्हाट टेम्परेचर जो सॉल्वेंट है वो बॉइलिंग हो रहा है। So there you will come to know the quality. At this point, the temperature is the solvent is boiling, and you are getting the output through the condenser coil. And after that, you are measuring the quantity, कि how much collection you are getting. क्योंकि उसमें जो impurities होती है पूरी वेपोराइज हो जाती है। हम्म। तो जैसे आपने 100 ml लिया है, कितनी हम्म। वेपोराइज हुई है और कितना आपको मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्शन हुआ है। सो हम्म। फ्रॉम देयर यू विल कम टू नो द सॉल्वेंट का क्या प्योरिटी है। So this is the only method as per the HTM standard. बिल्कुल ठीक है सर। अभी पहला क्वेश्चन लेते हैं मिस्टर प्रसन्ना जी का। सर Okay, प्लीज sir. आस्क क्वेश्चन, मिस्टर प्रसन्ना। Sir, good evening. Myself Prasanna, representing from Technopaints Hyderabad. Good Uh, evening, sir. yeah, thank you for the presentation. I think there was just little bit of able flashpoint apparatus. And Yes, what sir. is with the difference between digital apparatus and this one? Sir, जो distillation है, that is to check the solvent quality. And जो able flash Okay. point है, वहां पे आप flash point देखते हैं कि जैसे अच्छा, जहां पे only जितने भी जो, flashpoint of the powder material. sorry, Flashpoint of the powder material. no, not the powder, petroleum product. Able flash point is for the petroleum It's product. only for solvents, you mean to say. या सॉल्वेंट हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है, उसी के फ्लैश देखते हैं जिसकी लो So लो वैल्यू है। flashpoint in terms of safety, we are going to check, right? यस, एग्जैक्टली। At that what particular temperature, whether it's getting ignition or not, right?
Yeah, sir, the able is for the lower temperature. Okay. सेकंड Right. क्वेश्चन मिस्टर हरि प्रताप जी से। हरि प्रताप जी, अपने को अनम्यूट कीजिए सर। हरि प्रताप जी, अनम्यूट कीजिए सर। यस, हेलो। हाँ जी बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। यस सर। वेरी गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू फॉर प्रेजेंटेशन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अपना जो मॉइस्चर कंटेंट हम चेक करते हैं सर, हम्म। मॉइस्चर कंटेंट सॉलिड कंटेंट ही वैल्यू लेवल है क्या सर? तो देखिए, मॉइस्चर जो है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड पैरामीटर है, डिपेंड्स है कि आपको किसका देखना है। जैसे टिटेनियम डाइऑक्साइड है, तो आप सॉलिड कंटेंट से ओवन के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। पर जी। सपोज कीजिए अगर आपका सैंपल वेरीज होता है, आप बोलेंगे कि मुझे किसी लिक्विड में, सॉल्वेंट में देखना है या लिक्विड में हाँ। देखना है, सो इन दैट केस यू हैव टू यूज द कार्ल फिशर अपरेटस। काफी सर। कार्ल फिशर, तो ये सैंपल टू सैंपल आपका मॉइस्चर वेरीज हो जाता है। सॉलिड्स के लिए तो जैसे ओवन जो मेथड है, दैट इज ए वेरी ओल्ड हाँ। मेथड। अभी इसी में जी। नया मॉइस्चर बैलेंस आया है, जिसमें आपको रिजल्ट क्विकली मिल जाता है, पर जी। वो थोड़ा सा कॉस्टली है। तो आदमी इसलिए अच्छा अच्छा। प्रीफर करता है कि ओवन में, भैया सबके लेबोरेटरी, सबकी कंपनी में, लैब में ओवन रह जाता है, तो उसमें 10 मिनट ज्यादा लग जाता है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन था फर्स्ट टाइम, जैसे कि एक ये पेट मतलब गोदरेज कंपनी है जो अपना ये पेट एनिमल के लिए सीड्स बनाती हैं, हाँ जी। वहाँ के लिए मॉइस्चर कंटेंट के लिए किया था, तो उन्होंने कार्ल फिशर मेथड के लिए ही बात किया था। हाँ, तो सर कार्ल फिशर में क्या होता है कि जैसे जितने भी ऑयल, क्योंकि जैसे सीड है, सीड में हमेशा ऑयल, ऑयल इन उसमें ऑयल रहता है। इफ यू विल क्रश देन द ऑयल विल कम आउट। तो जैसे जो भी लिक्विड में, लिक्विड लिक्विड है, तो उसके लिए कार्ल फिशर इज द ओनली सोल्यूशन। यू हैव टू गो फॉर द कार्ल फिशर। अच्छा, ओके सर। और दूसरा हाँ जी। क्वेश्चन ये सर है, जैसे कि हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, हमें एमईक्यू टेस्ट करना है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो एमईक्यू टेस्ट कर सकता है? देखिए, एमईक्यू जो है ना, दैट इज, उसमें केमिकल प्रोसेस है पूरा। तो जो केमिकल जो लैब्स केमिकल होती, प्रोसेस। हाँ, जो केमिकल लैब्स होती हैं, जैसे टेस्टिंग लैब्स होती हैं, तो वहां पे आपको ये एमईक्यू का ये सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, मतलब हाँ जी। इंस्ट्रूमेंटेशन से नहीं चेक कर सकते हम? नहीं सर, एज सच ऐसा अभी कुछ अवेलेबल नहीं है। अच्छा। मिस्टर अशोक राठी जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम हरि प्रताप सर। जी। अशोक जी प्लीज आस्क द क्वेश्चन सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस हाँ जी, सर। आ रही है। गुड इवनिंग सर। सर, मेरा नाम अशोक राठी है, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। हम्म। और एट प्रेजेंट मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, एक हम लोग एक इनिशिएटिव लेके हमारे एसोसिएशन के तहत लेबोरेटरी शुरू कर दिए हैं। ओके। वी आर ए रॉ मटेरियल सप्लायर, और हम लोग एक रॉ मटेरियल सप्लायर की एसोसिएशन है। मिस्टर मल्होत्रा भी आए थे हमारे सेंटर में। यस यस सर, यस सर। हाँ जी तो सर। अभी वो सेंटर में हमने लैब चालू कर दिया, लैब में केमिस्ट भी आने लग गए हैं, हाँ जी। और हम लोग स्किल इंडिया से उसको एफिलिएट भी हो गए हैं। वेरी गुड। तो अभी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको है ना कंटिन्यूअस अपग्रेडेड रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हम्म। स्टार्टअप है बेसिकली। हाँ जी सर। और हम चाहते हैं कि आप जितने वेटरन हैं इस इंडस्ट्री में, और इतना आपके पास अप्रोच है, तो ऐसा कोई मॉड्यूल बैठ सकता है क्या कि आप एक रेंज ऑफ लेबोरेटरी आइटम आप रखें, हम उसको पेंट इंडस्ट्री में और केमिकल इंडस्ट्री में दोनों को उसको प्रोत्साहन करेंगे। और स्किल इंडिया से जो एफिलिएशन मिला है, और सेंट्रल स्किल वाले बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, तो इसको फैसिलिटी को रेडी रेकनर रख के, और उसका जो रेवेन्यू मॉडल है ऐसा हो कि हम हालांकि ज्यादा कॉस्टली नहीं है ये सारा कुछ, मेन जगह का है, लैब केमिस्ट का है, और यूजिंग करने वाले फेटर्निटी का है। तो ये तीनों चीज अपनी अपनी जगह पे एस्टेब्लिश्ड है। बस इसमें एक ही है कि एक फुल फ्लेज इनिशिएटिव होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोई मॉडल हमको, हालांकि ये पूरा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कंप्लीट होने जैसा सब्जेक्ट नहीं है, बट आप ये सोच के अगर हमें रिवर्ट कर सके, या मैं आपको वापस से कांटेक्ट कर सकूं
कि आपका पूरा जो रेंज है वो हम हमारी फैसिलिटी में रखें, और उसका जो रेवेन्यू मॉडल है या उसका पे बैक मॉडल है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, यूजर बेसिस हो, तो बहुत इंडस्ट्री एट ए लार्ज को ये यूजफुल होगा। ऐसा मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ। बाकी मनीष जी खुद भी जानते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो फैसिलिटी भी देखे हुए हैं, तो हाँ शायद जी। वो भी कुछ इस पे ऐड कर सकते हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। संजय जी, अशोक जी और उनके एसोसिएशन ने एक क्लस्टर बनाया है तमिलनाडु चेन्नई में, ओके। एंड उसमें एक उन्होंने एक लैब कहें या एक हॉल कहें, एक कम्युनिटी सेंटर टाइप बनाया है, जिसमें वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं और अलग अलग लोगों को वहां पर पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड और केमिकल और रॉ मटेरियल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहते हैं। ये उनका एक रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया इन्होंने वहां पे इनिशिएटिव लिया हुआ है विद द स्टेट गवर्नमेंट। एंड हम्म। हाँ, अशोक जी इस बारे में बात करते हैं। और हाँ ये जी। आपका अच्छा एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं वहां पे आया था। तो हाँ, इससे अभी पहले मैं तो कुछ जैसे क्वेश्चंस मैंने ले अभी लेता हूँ। बोला, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट से स्किल काउंसिल ने भी एफिलिएशन दे दिया है। हाँ अशोक जी, हम आगे थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें एक हाँ अलग से आपके साथ हम संजय जी के साथ बैठ के एक प्लान तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा प्रसन्ना हाँ जी जी। वापस आना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं जी? प्रसन्ना जी बोलिए। अशोक जी मैं आता हूँ आपके पास वापस इस बात को लेकर। हाँ, राइट सर, राइट हाँ सर, सर, राइट सर, गुड बिल्कुल इवनिंग सर। सर। मेरा जी डाउट प्रसन्ना है जी। कि आई वांट टू टेस्ट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द packing material, that is cartons. Currently, we are using Carl Fisher mission for testing of that. Is there any alternate method which is somewhat lesser cost, सर कार्टन्स के or any लिए, alternative method can be just suggested by Raj Scientific? ये सर फॉर द पैकिंग मटेरियल, यू वांट टू से द कार्टून्स, ओके। Yes, yes, yes. So I think that there is a very simple machine is coming. It will call it moisture meter. उसमें आगे दो pins होते हैं. So that you have to insert in the cartoons. So immediately you will come to know the moisture of the cartoon. तो उसके लिए कार्ल फिशर आई थिंक इज नॉट सुटेबल, क्योंकि कार्ल फिशर इज वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट। और ये जो Yes, yes, मॉइस्चर that's मीटर what I आ रहे, was thinking of. यस सर, यस सर। एंड तो ये जो मॉइस्चर मीटर आ रहे हैं, सो दिस ये बहुत चीप क्वालिटी के हैं, मतलब लो प्राइस है। एंड इट इज वेरी इमीडिएटली यू विल गेट द रीडिंग in the cartoons कि what if any moisture is there or not। Okay. हाँ Uh, जी। can you just ping me once in my? सर आप अपना I think I will share the number in मिस्टर my कुश, in your आप chat अपना box. लास्ट वाला जो पेज है कांटेक्ट वाला, वो आप थोड़ा सा दे दे वापस। ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, अगर किसी को संजय जी और कुश जी से मिलना है, ये उनके फोन नंबर्स है, ये उनका एड्रेस है। राज साइंटिफिक, इनका गोरेगांव ईस्ट में ऑफिस है, एंड वर्कशॉप इज इन ऑल्सो इन गोरेगांव। और आप इनका नंबर नोट कर सकते हैं, स्क्रीन का फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप मोबाइल से जुड़े हैं तो। और इनसे कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी इनसे किसी भी तरह की जानकारी और लेनी हो, यू कैन कॉल देम। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर रविंदर डिमरी। रविंदर जी प्लीज आस्क द क्वेश्चन सर। Yeah, good evening. गुड इवनिंग सर। Yeah, I want to know whether there is a meter which can go for the whiteness index for the pigments or powders. So whiteness meter is coming, from which there is a two instrument is there, single instrument from which you can check the two parameters. One is the whiteness and another is the brightness meter. So that is the Okay. instrument is there, from easily you have to keep the instrument on your powder and you will get the Yes. whiteness of your sample. So it will Okay. call a Thank whiteness meter. whiteness meter. Yeah. Okay. Whiteness Thank meter you. or brightness meter you can see. Okay. Thank you. Thank you. मनोज लमानिया जी। या गुप्ता जी, गर्ग जी। गर्ग जी, सॉरी, संजय गर्ग। संजय गर्ग। अनम्यूट कीजिए सर, कुश जी आपने अनम्यूट कीजिए सर। या एक्चुअली मुझे एक ऐसा मीटर बताइए जो कि वेट फिल्म को स्कैन करे और ये बताए कि हाउ मच थिकनेस इन द प्राइमर, पेंट एंड लेकर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, so that we can control by the manual process or robotics the coating thickness in the various stages. Is any meter is available to find out the coating thickness in the wet condition to measure the and
any radiations or any scanners of the film thickness. तो इसमें मनोज भी जी कहाँ से बोल रहे हैं, थोड़ा एक बार अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर? मेरा नाम मनोज लवानिया है, मैं रॉकमैन बावल में हूँ। ओके, पेंट कंपनी का क्या नाम है सर? रॉकमैन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री, रॉकमैन इंडस्ट्रीज। ओके 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 जी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मनोज जी, ऐसा है जो आपने वेट फिल्म थिकनेस गेज कहा है, एट प्रेजेंट अभी इसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई है, फिर भी जी। जैसे आप स्कैनिंग वगैरह बोल रहे हैं, सो वन देयर इज टू मेथड इज देयर, वन कॉम टाइप वेट फिल्म थिकनेस गेज इज अवेलेबल एंड अनदर इज व्हील टाइप। तो जैसे जो भी व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग ऑन योर सरफेस, so that time you have to use the comb type film thickness gauge or wheel type film thickness gauge. So immediately you will come to know what is the WFT, wet film thickness gauge. So this is at present this method is available everywhere, even in the Europe also. There is no other method is available to check the WFT. This is the comb and wheel type WFT. So this is a very common instrument which is using to check the WFT. But this will explain. This will explain the various primer, paint, and lacquer, the all coatings in separate manners, or this is the show the compiled thickness of the paint or primer or lacquer. So you will get the combined reading. There is at present no parameter is there. You will get the individual reading. So total WFT you will get this much. Is any meter is available to scan the separate thickness in the no sir. Compiled thickness applications? इंडिविजुअल तो थिकनेस की आप बात कर रहे हैं, अभी तक यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, नॉट इन आवर इंडिया और अब्रॉड आल्सो, तो स्टिल द वर्किंग इज देयर। और अभी एट प्रेजेंट WFT ही है जो है, वन टाइप इज व्हील टाइप एंड कॉम टाइप। ओके थैंक यू राजीव गोपलानी जी, वेलकम सर। सर मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू से कि वो तो मुझे पता था। राज साइंटिफिक से खाली बोलना था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और सर हमारे लैब में स्टोमर, CO एनालिसिस का इंस्ट्रूमेंट, स्पेक्ट्रोमीटर, अविन, वाइटनेस ब्राइटनेस मीटर, शेड मैचिंग का पैनल का जो इनका वो है पैनल, अविन, सब काफी इंस्ट्रूमेंट्स है राज साइंटिफिक के। और एक चीज बोलना चाहूंगा ये प्लेटफॉर्म पे कि सर का सर्विस इतना अच्छा है कि अगर कोई आपका 500 रुपए का भी चीज खराब हुआ रहेगा तो भी वो इमिडिएटली कुरियर कर देते हैं, और कभी अगर कुछ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुरंत उनका बंदा भी आता है। तो आई थिंक दूसरे भी जनों से पहले हमने इंस्ट्रूमेंट्स लिए, बट जितना अच्छा इनका सर्विस है ना, वेरी रेयरली यू विल फाइंड सच गुड सर्विस इन इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री। बस इतना ही ये तो बोलना मैंने भी था महसूस किया है, बिकॉज वी इन पेंट विजन हमने जो लैब बनाया हम लोगों ने इन्हीं से सब कुछ परचेज किया है। एंड द थिंग इज कि जो अभी राजीव भाई बोले हैं वो बिल्कुल सच्चाई है। हमें कभी भी कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आया है तो उसका जो क्योरिंग है, उसका जो सर्विस है वो बहुत जल्दी हुआ है। राजीव भाई बहुत बहुत थैंक्स आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक यू राजीव जी। कुछ पेंट विजन के लिए बोलना राजीव भाई? पेंट विजन तो आप तो समाज सेवा ऐसे कर रहे हो, मेरा तो आपको सैल्यूट है। नहीं जस्ट जोकिंग सर। राजेश गावड़े जी जो हिसाब से आप सब जनों को जोड़ रहे हो, इज अ वेरी गुड थिंग। थैंक्स अ लॉट राजीव भाई, यू आर सो नाइस पर्सन। राजीव गावड़े जी, राजेश गावड़े सॉरी। एम आई ऑडिबल सर? यस सर। ओके, अभी जो क्वेश्चन चल रहा था थिकनेस के लिए, मेजरमेंट के लिए नहीं है, बट देयर इज अ इक्विपमेंट टेट्राहर्ट्ज सेंसर that can be used to measure the thickness in wet film also, and dry also. Secondly, the question is normally in regular way delta E is calculated. Can Mr. Garg can explain delta M? Sir, delta M or delta E? Both are different. That's why I'm asking. Rajesh ji, can you give your introduction please? Yeah, myself is Rajesh Gowde. I'm a consultant for paint application, and from last 23 years, I'm serving for different organizations, Bright Brothers, Bright Syntex, Veroc, and Videocon. You're freelancing doing this job, or you're in some company or something like that?
No, I'm doing a lot of things. I got 2 patents in my name, nitrogen Great, painting, sir. Great, great, great. Sir, and just drop your phone number with in chat box, please. I've given you last time only. I just want to Okay. understand because Volkswagen is asking for Delta M. So we know about the delta E. We don't know about we don't aware of any delta M. And delta E is to check No, the color difference. that is the LAB value, na? That is Yeah, a, LAB value. and they are asking for Delta M. That's why I'm asking So what is so Delta M. so we are not into delta M. Okay. Here we are some great consultants also, great technocrats also. Maybe we can take your question in few minutes. Let me complete with this session. And Rajesh ji, wait for some time. We will Yeah, we will I'll ask do it. somebody in this session only. Yeah, Shreya, Shreya ji, please ask the question. Hello. Yes, Hi, madam. sir. I'm Shah from Sohan Industry. From सर मेरा क्वेश्चन था सोहन इंडस्ट्री. Soham. Okay, please. ओके. मेरा क्वेश्चन था सर, हम इंस्टेड ऑफ एयर चेम्बर हम पैनल ड्राइविंग के लिए ओवन यूज कर सकते हैं? You can use the oven, no problem, madam. You can use the oven. Oven is for the baking purpose only. Everywhere oven ओके. is. Dryer में क्या रहता है कि whenever you are using, तो वहाँ पे जो dust particles जो भी आपके environment में है, तो it can accumulate on your sample. But if you use the oven, तो जो भी dust particles वगैरह हैं environment में या आपके rooms में, तो वहाँ से भी अच्छा. आपको एक safety मिल जाती है. So easily the oven is the best method for the baking. सर लेकिन उसका टेम्परेचर मतलब क्या एयर चेम्बर और इसका टेम्परेचर में डिफरेंस क्या कर सकते हैं मतलब पैनल ड्राइविंग के लिए? सर मैडम देखिए डिपेंड्स रहता है कि जैसे टेम्परेचर, तो उसमें जैसे ओवंस में यूजुअली 250 डिग्री तक यूज होता है. 50 डिग्री टू 250 डिग्री, एंड डिपेंड्स अपॉन यू कि व्हाट टेम्परेचर यू वांट टू सेट. मोस्टली कस्टमर बेकिंग के लिए 80 डिग्री यूज करते हैं, पर अगर आपका सैंपल ओके. इट विल विथस्टैंड टू 80 डिग्री, तो यू कैन यूज द 80 डिग्री. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. ब्रज के बच्चन जी, अनम्यूट yourself, sir. जी. Sir, I just wanted to add to the last question that Please. can we use oven? Can I add something? Yeah, please. Okay. See, the question is actually no one can answer it in a very straight way because it depends that which panel you are using. Normally, we observe that with the pressure, with the drying schedule, the shade changes. So you have to be very, very cautious. You have to stabilize the drying process. Normally, once you are making a drawdown, leave it for 5 minutes, or if it's enamel, 10 minutes outside, and then you can keep it in the oven. For water base, 60 degrees Celsius maximum, and for other like enamel, 80 degrees Celsius maximum. And also you have to control the drying time, otherwise the shade variation will come across patches. So you have to be very cautious. नेटवर्क मेरे ख्याल से ब्रेक हो गया है. राजेश जी, अपना क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे सर? आई एम जस्ट आस्किंग फॉर डेल्टा एम. डेल्टा एम. हाँ. ओके. ये व्हाट यू वांट टू आस्क अबाउट डेल्टा एम? डेल्टा एम मतलब वोल्क्सवैगन बोलता है कि हमें डेल्टा एम चाहिए. डेल्टा एम मतलब 5 ऑपरेटर लोग जो बताते हैं वो रीडिंग. अच्छा, हमारे साथ में कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं और संजय जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं पूछ सकता हूं उनसे क्वेश्चन कुछ सर इस बारे में? हाँ जी, प्लीज 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 सर. हमारे साथ डॉक्टर गौरव मुझे नजर आ रहे हैं. डॉक्टर साहब, आप इसका आंसर दे पाएंगे सर? डॉक्टर गौरव. हेलो मनीष जी, हाउ आर यू? सर नमस्कार सर, कैसे हैं सर? नमस्कार नमस्कार जी, बताइए सर. सर कैसे राजेश गावड़े जी हैं हमारे साथ, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. राजेश जी, प्लीज हाँ. आस्क क्वेश्चन वंस अगेन सर. सर नॉर्मली सब लोग डेल्टा ई मांगते हैं, वोल्क्सवैगन डेल्टा एम मांगता है. ओके.
सो ये आप कलर मैचिंग जब भी आपका जो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ओईएम की तरफ से आपके पास डिमांड है, कहाँ से डिमांड ये आता है? Because we are painting for OEMs only. We are in the field of Is it UV printing or is coating, it painting? painting. पेंटिंग। राजेश ओके गावड़े जी देखिए, एप्लीकेशन करते हैं सर, एंड कंसल्टेंट है एप्लीकेशन को लेकर। ओके राजेश जी देखिए, जो बेसिक डिफरेंस डेल्टा ई और डेल्टा एम में है वो क्या है कि डेल्टा ई आप जैसा जानते हैं कि कलर के डिफरेंस को विद द रिस्पेक्ट टू ह्यूमन आईज परसेप्शन से देखा जाता है। इट इज मोर एक्यूरेट फॉर्म टू जज अ कलर। वेयर एज अगर आप डेल्टा एम की बात करें तो डेल्टा एम एक्चुअली में डेल्टा ई की वो वैल्यू है जो सेम डेंसिटी के ऊपर यानी सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर पेंट की निकाली जाती है। Not getting exactly. नॉट गेटिंग एग्जैक्टली ओके। जैसे आपके पास में सेम कलर के दो पेंट आए, आपने उसको अप्लाई किया और उसका जब भी आपने वैल्यू देखने गए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे, दैट इज द डिफरेंस इन डेल्टा ई। ओके Right. जब भी आप ये डेल्टा ई का डिफरेंस यानी वो दोनों सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होगी तभी देखने जाएंगे, उसको डेल्टा एम बोलते हैं। आप At the दो time of सैंपल कोई भी ले रहे हैं राजेश जी तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होनी चाहिए। नहीं मनीष दैट जी, इज ओके, बट जब कंपनी देगी, अभी सपोज एशियन पेंट वहां पे दे रहा है, तो जब उसने डेल्टा देखा हुआ है अपने कंपनी के अंदर, तो वही स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा ना वहां पे। नहीं ऐसा नहीं है। ये एप्लीकेशन के टाइम की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है। इट्स नॉट Now, अबाउट द सप्लाई टाइम। right, yeah, now you're talking about the gun solids. Yes, this is about the gun solid at the time of application, not about the supply. So at that time only L can be changed, lighter or darker, because the No, viscosity. all three can change. How all three can be changed? Because A and B are for greener, bluer, and redder, and this one. A So can be changed. when you are diluting any of the paint, the differential the intermolecular space between two different specific gravity products is different. So the diffraction of light will get changed. That's why it might be possible that undertone of the pigment may get changed. Sir, Because undertone is just, yeah. I'm agreeing with you, but suppose somebody is painting in Rajasthan for the Volkswagen and somebody is painting in Pune, the car should be matched, na? That is their main this one. When you are taking for what you call. That is why the term delta M is introduced, sir. Right. So the application solids and the viscosity and specific gravity all should remain same. So basic thing is that if you match the specific gravity, then these two parameters will be the same: the solids and the viscosity. Right, now I got at it. the time of application. So if we are talking the difference in color with respect to the same specific gravity at the time of application, then that is derived as delta M value. Absolutely right. The same delta E is now denoted as delta M. Correct. Rajesh ji, I think you got your answer. Yeah. Because in Rajasthan, you have to add a little bit less thinner in Pune, less than Pune, because Pune the temperature is quite less than Rajasthan. So with respect to temperature, that is up to the application person who is doing this application. Okay, हम आगे बढ़ते हैं सर। सबको मैं शुरू में कहना चाह रहा था, बट हम लोग थोड़ा सा टाइम रनिंग में थे इसलिए नहीं कह पाया हूँ। सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो खैर समय भी हो गया है, लोहड़ी सबने मना भी ली होगी और कुछ मना के आ भी गए होंगे, और कुछ लोगों ने आज मिस किया होगा बिकॉज ऑफ लोहड़ी। बट टुडेज प्रेजेंटेशन आई थिंक ये सारा क्रेडिट जाना चाहिए मिस्टर कुश को, जिन्होंने बहुत मेहनत से ये प्रेजेंटेशन बनाई है। मैंने सभी को अलाउ कर दिया है कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर कुश, आई जस्ट वांट कि आपको सब लोग देखें, सो अपना वीडियो भी आप ऑन करें प्लीज।
और सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें एक बार। ओके, ग्रेट गाय। आपने जो आज किया है दिस वेरी वंडरफुल। संजय जी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छे से कुश ने प्रेजेंटेशन दी है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए कुश गर्ग के लिए। ताली बजाओ। राजेश जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए, वापिस आ रहा हूँ सर आपके पास। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज का प्रेजेंटेशन हम लोगों का इसलिए इम्पोर्टेंट था कि हम लोग पेंट इंडस्ट्री को थोड़ी सी जानकारी दे पाए कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं आपके पेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल की है चाहे वो फिनिश गुड की है। तो ये सब क्वालिटीज को चेक करने के लिए आप राज साइंटिफिक वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सस्ते भी हैं। मतलब सस्ता वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट लोगों को चाहिए रहते हैं, तो वो भी है। और साथ में शायद संजय जी ने एक किट भी बनाया है जिसमें कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आप वो किट भी इनसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और वो कुछ मतलब बंच ऑफ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका प्राइस भी बड़ा इकोनॉमिकल है। और इसके प्राइसिंग के लिए आप संजय जी से या कुछ गर्ग जी से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राज साइंटिफिक वालों से। संजय जी कुछ बोलना चाहेंगे? जिसका भी सबसे पहले ये है कि जिसका जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पता चल जाएगा। सो अकॉर्डिंगली वी कैन सजेस्ट द गुड इंस्ट्रूमेंट्स कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स दे वांट। इसमें से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ऐसे हैं, आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, एएसटीएम स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं और आईएसओ के हैं। अब इंडिया में ज्यादातर एएसटीएम स्टैंडर्ड ज्यादा चल रहा है क्योंकि अभी सब लोग एएसटीएम की डिमांड ज्यादा है। पहले इंडिया में आईएस स्टैंडर्ड चलता था, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड। पर अगर किसी को कुछ भी चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या जो भी उसकी एप्लीकेशंस है, वो मुझे हमारे को मेल कर सकता है या और इवन ही कैन कॉल आल्सो। तो उसके बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं जो जो उनकी रिक्वायरमेंट और है। कोई जो आपने एक किट बनाया था संजय जी, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? सर किट हमने इसमें से मिलकर एक किट बनाया है कि जैसे अपना रॉ मटेरियल का टेस्टिंग है, फिनिश गुड्स का टेस्टिंग है, तो इसमें हमने हर एक में एक किट बनाया है। दैट इज अ वेरी इकोनॉमिकल किट जिसमें हम लोग उनमें एक जैसे एजुकेशन पर्पज के हिसाब से और स्मॉल स्केल के हिसाब से हम उसको डिस्काउंट रेट पे ही दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है बेसिक जो लेबोरेटरी है, बेसिक लेबोरेटरी नीड जो है उसके हिसाब से आपने किट एक डिजाइन कर दिया है ना सर? हाँ जी सर, वी ऑलरेडी हैव डिजाइन, जो हमने डिजाइन कर दिया है। और पर उसके हिसाब से हमें एक बार पता चल जाएगा कि ये जो एप्लीकेशंस है, किसी को कुछ उसमें से ऐड करना है तो हम ऐड भी कर सकते हैं और निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू संजय जी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो ग्रुप्स में थोड़ा सा लिख दिया कीजिए ताकि और भी लोगों को पता लगे कि पेंट विजन के हमारे जो ये वेबिनार्स हैं वो बहुत एजुकेशनल है, लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। एंड अभी हम लोग अलविदा कहेंगे आप सबसे और रिकॉर्डिंग में बंद करने जा रहा हूँ। उसके बाद कुछ नॉर्मल जो फॉर्मल टॉक्स रहती है वो हम लोग करते हैं। आप मुझे 2 मिनट दीजिए सिर्फ। कांग्रेस